morning, my viewers, and welcome back to my YouTube channel. I am Saurabh Kumar Sinha, Physics faculty for IIT Mains, Advanced and NEET. As I have discussed in my first video that I am going to prepare three kinds of video. First video for 11th moving student, second for 12th moving student, and third for special demand because student had demanded me to make a video on some complex circuit which is a part of current electricity. So I have prepared a video. Part 1 is released on my YouTube channel. You can watch the video and see the approaches, that what approach I have followed to solve circuit with ease, and that approach is so helpful that you don't need to put pen and paper. If your calculation is so fast, you can easily calculate if you know to add and sub-add, basically series and parallel. So today I am bringing a new video of this complex circuit network, or I can say it is a part 2 of complex circuit network. So today I will solve more complex circuit like cubes, stars. I will take many standard problem because as I promised that in my channel you will find good content, because content matters. Because I will not deal. I will go one by one. I will take simple problem, then I will increase the level to advance. Means I will pick Cengage and also Eurodot problem in which, and I will not solve only. I will solve by giving you a proper approach so that you can follow and solve the circuit easily. So today I am solving first circuit is my cube. Look, many students find so much difficulty in solving cube circuit. Reason, because if in the question it is given that all resistance are same, means every resistance is having branch are having same resistance, so they just remember the answer. But if you don't know the approach, then what will happen? If you don't know the approach, then what will happen? If the value of resistance is different in all the branches, then you need to know the right approach to solve the circuit. Otherwise, remembering the answer doesn't work. So, for that sake, I am giving you the right approach. Means in my first part of the circuit solving, I just told you that there are three methods of solving. First was method of shape potential. Second was symmetry and folding method, and third was connection removal method. Okay, and if anyone want to watch the part 1, please do watch, because it will make very simple to understand the part 2, because it is linked with that only. Because look, many student has a query, sir, if I left class 11th, can I study class 12th? क्या मुझे फिजिक्स समझ में आएगा अगर मैं 11th का फिजिक्स छोड़ दूं? तो आई जस्ट नो, मैंने उनसे यही बात कहा कि सर अगर आप 11th का फिजिक्स नहीं पढ़ोगे तो 12th में दिक्कत आएगा, क्योंकि फिजिक्स में सारे चैप्टर्स जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं. अगर एक छोड़ोगे तो एक नहीं समझ में आएगा. तो बेसिकली इन क्यूब सेक्शन there are three possibilities, and the examiner will ask you R equivalent, find R equivalent across diagonal, across the edges and across the diagonal of the face. I have just marked all the points. In this cube there are 12 resistance. So I have told you the conventional method. I am taking the example of first, means I am finding R equivalent across diagonal. So tell me what point I am considering here. You already know. I am finding R equivalent across diagonal, means across points 1 and 7. So what is the conventional approach, sir? This 1 and 7 is diagonal or not of this cube? So I have to find R equivalent across diagonal of the cube. So look, conventional method says that just take a wire and just connect to 1 and 7. This was my conventional method or not? Just connect to a battery.
the current I should enter through the 1 and leave through this 7. Leave through this 7 means across any point, if I need to find R equivalent, what I need to do, sir? I just simply join a battery between the point, and from the point 1 this current should enter and the point 7 current should leave. This was conventional or not? So I have to find R equivalent across this 1 and 7. So this type of circuit can be solved by this method called method of same potential. Method of same potential. And how this method is applied? See, method of same potential. So you will feel so much comfortable in solving method of same potential. Look, what I am doing. See this point 1. From this point 1, can you see this? From this point 1, there are 3 resistors or not? This branch, this 5 and this 4. Means if I will take a current I, this I will divide by what? I by 3 and I by 3 or not? Means you can see or not, these 3 wire, this 3 from this point 1, this 2, 5 and 4 are equipotential or not? They are same potential. See, they are same voltage. This V4 is equal to V2 is equal to V5. Reason? So this is called same potential. If 3 wires are same potential, so I can join these 3 wires to simply one point. What I am saying, are you getting? Means if from this point 1 there are 3 wires, see 3 points, 4, 5 and this 2. Means in this wire, this I enters and I getting divided across these 3 points, I by 3, I by 3, I by 3. Can you feel this or not? These are having same potential or not? Same voltage. So these 3 points can be connected by a single point in the circuit. If you find 4 circuits, you have 4 branches which are at same potential. These 4 branches can be shown by a single point. 4 branches can be shown by the single point, which is called method of same potential. So are you getting my point or not? What I am saying right now? Look, can I write this or not? V1 minus V2 barabar I by 3 into R or not? See, look, this is V1, this is V2. There is a voltage drop because in the path of current a resistance is coming or not. So if in the path of current a resistance is coming, means voltage is getting dropped. See, means V1 minus V2 barabar I by 3 into R. In this, can you see this? And I just mentioned here V2 barabar V4 is equal to V5 or not? These 3 points are at same potential or not? Please see here. V2, V5 and V4 are at same potential or not? Similarly, from 7, can you feel this or not? This point and this point are at same potential or not? Say 6, this and this. Are you getting my point? What I am, this is old method. V1 minus V2 barabar I by 3 into R. So from this point 1, this 2, 5 and 4 are at same potential, agreed or not? So this 3 point can be shown by a single point by the method of same potential. Are you getting every concept right now? What I am, just please see the circuit. Current I, simple logic I am following. अगर मैंने 1 पॉइंट से करंट I लिया तो ये करंट कितने ब्रांच में डिवाइड हो रहा है? KCL के थ्रू. तो ये I by 3 पार्ट में बट गया है कि नहीं? अब ये बट गया मतलब कि ये 4, 5 and 2 इक्विपोटेंशियल हुआ कि नहीं?
तो ये मेथड बोलता है कि अगर 3 और 4 ब्रांच सेम वोल्टेज पे है तो उनको सिंगल पॉइंट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। आई होप यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल से करना है, ये पॉइंट क्लियर है। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि 3, 6 एंड 8 भी क्या है, सेम पोटेंशियल पे है। ठीक है, चलो अब मुझे ये मेथड आ गया, अब मैं इसको आराम से डील कर सकता हूँ। आप तब तक के लिए तो लिख लो इसको, इस मेथड को आप इसको तब तक के लिए लिख डालो। ठीक है, चलो तो हम ये क्वेश्चन को करें। सिमिलरली आई कैन राइट व्हाट, आई कैन राइट ओनली 3 means V3, V6 and V8 are also what, same potential or not? एकदम सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप इंग्लिश नहीं बोलते हो क्या, मीन्स आप इंग्लिश में वीडियो बनाते हो, सॉरी आप हिंदी नहीं बोलते हो क्या? ऐसा नहीं है, बस मैंने इंग्लिश में इसलिए बनाना स्टार्ट किया कि आई थॉट इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, लोग इंग्लिश को समझते हैं सभी जगहों पे। एंड आई फील हिंदी में एक फील है, फिजिक्स में जब हिंदी आता है ना तो एक और फील आ जाता है फिजिक्स में। ओके, तो यहाँ तक आई होप इस पॉइंट तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप सिंपल केसीएल से जाओ। ये पॉइंट 1 है जो 3 ब्रांचों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, देख लो, और 7 से देख लो 3 ब्रांचें निकली हुई हैं, 8, 6 एंड 3। इसमें करंट जो है वो कुछ ऐसा डिवाइड हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, इस पोटेंशियल का कहना है कि अगर 3 से 4 ब्रांच सेम पोटेंशियल में है तो उसको सिंगल पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर लो। आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा। तो अब चलो हम आगे का प्रोसेस, हमको इसमें आगे क्या करना है थोड़ा सा देख लेते हैं। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा सर। लॉजिक से जाओगे तो आपको सवाल कैसा भी मिले या क्वेश्चन कैसे भी मिले उसको आप सोल्व कर पाओगे। आपको लॉजिक पता नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगा। चलो ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैंने पहले ही मार्क कर लिया है 2, 4 एंड 5 मेरा क्या है, सेम पोटेंशियल है। ठीक, ये अपना क्या है, सेम पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल है। एंड मैंने एक पॉइंट और मार्क किया है, कौन सा बताओ, 3, 6 एंड 8। 3, 6 एंड 8 किसमें है, सेम पोटेंशियल पे है। चलो यहां तक तो हम लोग कर चुके हैं, और ये बहुत सिंपल है, बेसिक सर्किट है, क्योंकि 1 से 3 ब्रांच निकल रहा है और 7 से 3 ब्रांच निकल रहा है। ठीक है, और वो जंक्शन है तो वहां पे करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। चलो अब देखो मुझे निकालना है, सबसे पहले 1 और 7 को लिख लो। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 7 है। ठीक, मैंने 1 और 7 को निकालना इसके बीच में है, मैंने इसको मार्क कर लिया। अब आप बताओ मैं क्या करूंगा। 1 से मैं निकाल सकता हूं क्या 3 वायर, देखो मैं वही बोलना चाह रहा था। मैंने 1 से 3 वायर निकाल लिया क्या, इसका नाम क्या रखा, 2, 4, 5। समझ में आ रहा है, आर आर आर। ठीक, कोई प्रॉब्लम। और अगर मैं 7 को यहां दिखाऊं तो मैं 7 से भी 3 वायर निकाल सकता हूं। 7 से देखो मैं क्या बोलूं, अगर 3 वायर सेम वोल्टेज पे होगा, सेम पोटेंशियल पे होगा, तो मैं उसको सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट करूंगा। देख लो, ठीक, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। प्लीज देख लो एक बार अच्छे से, जो सर्किट ड्रॉ किया एक बार देख लो। अब 7 से भी मैं 3 वायर निकाल सकता हूं ना सर। आई होप आपको यहां तक कोई डिफिकल्टी फील नहीं हो रहा होगा, सबको बात समझ में आ रहा है। यहां तक कि मैंने क्या किया, 3 वायर निकाल, इसका नाम क्या दिया बताओ, ये मैं कौन सा हो जाएगा वायर, 3, 6, 8 होगा ना, 3, 6, 8 बोलो, सही है। और देखो यहां से जो वायर जाएगा, अब देखो अब यहां से 6 तो हो गया,
अब मुझे 6 वायर और चाहिए, बताओ मैं 6 वायर कहां से लाऊंगा? देखो 2 और 3 के बीच में देखो आपको 6 रेजिस्टेंस और दिख जाएगा। जस्ट वॉच प्लीज। 2, 3 गेटिंग 1 रेजिस्टेंस और नॉट। 2, 3, 4, 6 देखो 4 है, 4 है, 4, 3 बीच में मिलेगा एक रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको यहाँ पे 6 रेजिस्टेंस दिख जाएगा। कितना दिखेगा? 6 रेजिस्टेंस आपको और दिखेगा। यहां से आप अगर इसको अगर बनाओगे तो आपको 6 रेजिस्टेंस और दिखेंगे, जो आपस में क्या होंगे सर? जो आपस में जो होगा वो सब पैरेलल नहीं होंगे। अब चेक कर लो, ये पॉइंट क्या है? 2, 4, 5 और ये क्या है? 3, 6, 8। इन जो 6 पॉइंट के बीच में क्या है? दो दो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको। तो कितने हो गए यहाँ पे? आर 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 आर। अब बताइए कितना सिंपल सर्किट हो गया सर? ये क्या हो गया? R/3। ये क्या हो गया? R/3 और ये क्या हो गया? R/6। नाउ कैन यू टेल मी द आंसर प्लीज? अब कोई भी आंसर बोल सकता है क्या कि इसका आंसर क्या होगा? बताओ। दिस सर्किट इज सिंपली मॉडिफाइड और नॉट? दिस सर्किट इज सिंपली मॉडिफाइड। ये 1 हो गया, ये 7 हो गया। बताओ ये क्या हो जाएगा? R/3, R/6, again this will be R/3. Now this is very simple or not? This is very simple. Now solve it. R/3, R/6, R/3 क्या होगा? इसका आंसर जल्दी बताओ सॉल्व करके मुझे। आई होप दिस आंसर विल बी बता सकता है। इसका आंसर क्या होगा सर? 5 R/6। I got my R equivalent or not? That is 5 R/6। आप चाहते हो तो सॉल्व करके दिखा दूंगा मैं, बट कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली क्या करना आपको? सिंपली आपको बेसिक मैथ लगाना है। ठीक है, आपका ये पैरेलल में है तो एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये हो गया 2 R R कितना हो गया? कर सकते हो। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल जाएगा सॉल्व करने पे। आई होप सबको ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी को इस पॉइंट पे दिक्कत है तो फिर से देख लो। 2 और 3 के बीच में एक ये और एक ये है, दिख रहा है? 2। अब देखना 4 और 6, 4 6, 4 है, एक ये वाला है, एक ये पॉइंट लिया मैंने और एक ये ले लो, ये हो जाएगा। तो आपको 6 रेजिस्टेंस दिखेगा जो आपस में क्या होंगे? पैरेलल में होंगे। तो आंसर क्या हो गया? 5 R/6। तो स्टूडेंट करते क्या है, ये आंसर को याद कर लेते हैं। डायगोनल 5 R/6 रहेगा। पर ये बताओ अगर तुम्हें अप्रोच ही पता नहीं रहेगा तो इसको याद करके क्या करोगे? अगर इसके वैल्यू बदल दिए जाएंगे, 2 ओम रहेंगे, 3 ओम रहेंगे, 5 ओम रहेंगे, या अलग अलग ब्रांच के अलग अलग रेजिस्टेंस रहेंगे, तो आई डोंट थिंक कि तुम कर पाओगे इसको सॉल्व। तो आई होप तुम लोग को ये अप्रोच समझ में आया होगा, या आप लोग को ये अप्रोच अच्छा लगा होगा सॉल्व करने का। मैंने कुछ नहीं किया, जिस पॉइंट के कॉस्ट निकालना है उसको साइड में रख लिया और देखा कि किस पॉइंट से कितने ब्रांच सेम पोटेंशियल पे है। जो सेम पोटेंशियल पे थे उसको मैंने सिंगल पॉइंट से दिखा दिया। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपका तीनों क्या है? सीरीज में। तीनों क्या है? सीरीज में। तो व्हाट इज माय आर इक्विवेलेंट सर? आर इक्विवेलेंट इज 5 R/6। चलो अब चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम चलेंगे किस पे? अक्रॉस दिस एज 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया होगा सॉल्व करने का सर्किट। ये मेरा लास्ट पार्ट है कॉम्प्लेक्स सर्किट का। मैं नाइट में आज इलेक्ट्रोस्टैट 12th का टॉपिक अपलोड करूंगा और 12th का कम से कम 2 घंटे का लेक्चर रहेगा सर। बहुत सिंपल रहेगा, सबको समझ में आएगा। प्लीज मैं आप लोग को एक बात बोलता हूँ, कंटेंट
वाले जो चैनल है उनको फॉलो करो, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई डिवाइड से फिजिक्स नहीं आएगा। हाँ, उनमें बेसिक प्रॉब्लम होने चाहिए, आपको अब सही अप्रोच दे, क्योंकि फिजिक्स में सर कुछ रटना नहीं होता है, कुछ याद करना नहीं होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था फिजिक्स पढ़ाना, तो मुझे जब मैं पढ़ता था फिजिक्स तो बहुत डिफिकल्ट लगता था 9th 10th, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता था, मुझे लगता था कि फिजिक्स जो है ना, मुझे अप्रोच ही पता नहीं होते थे हाउ टू सॉल्व। बट जब मैंने स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना शुरू किया, उनके थ्योरीज को देखा कि हाँ कैसे क्या होता है, क्योंकि आजकल का एक कल्चर ही खत्म हो गया है, आजकल लोग बुक पढ़ते ही नहीं है, सबको चाहिए क्या बना बनाया मिल जाए। और ये सही भी है, क्योंकि आजकल टाइम कम है, लोगों के पास समय कम है, और कम टाइम में ज्यादा कंटेंट चाहिए। तो प्लीज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही देखो, ज्यादा चैनल देखने से नहीं होता, चैनल वही देखो जो आपको कंटेंट दे, और सिंगल चैनल देखो, 10 देखोगे तो 10 तरह का कंसेप्ट सीखोगे। मेरा मेरा तो यही मानना है कि अगर एक तरीका आता है और एक तरीका आता है, तो बाय सॉल्विंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम तुम्हें और भी तरीके खुद ही आ जाएंगे कि हाँ मैं इससे भी कर सकता हूँ, बिकॉज फिजिक्स सिर्फ प्रैक्टिस करके ही आ सकता है। ओके, तो आई होप दिस सर्किट इज डन। नाउ आई विल गो बाय व्हाट, आई विल गो बाय द नेक्स्ट पॉइंट। ये क्या है बताओ? अब मुझे कहाँ निकालना है, किसके क्रॉस निकालना है? अब मुझे किसके क्रॉस निकालना है इक्विवेलेंट? अब मुझे निकालना है आर इक्विवेलेंट किसके क्रॉस, जल्दी बताओ। अक्रॉस द एज ऑफ द डायगोनल, किसके क्रॉस निकालना है मुझे? एज, एज। देखो, अब जब मैं एज का बात बोल दिया, एज का बात बोला, तो मैं किसके बात बोल रहा हूँ? आर इक्विवेलेंट 1 2 के क्रॉस। अगेन देखो यार, एकदम सिंपल लॉजिक है, एकदम सिंपल लॉजिक। जब ये सब पूछा जाए तो हमारे दिमाग में सबसे पहला चीज क्लिक क्या करना चाहिए? क्या पूछा गया? पूछा गया भाई साहब कि हमें निकालना है 1 और 2 के बीच में, तो करना क्या होगा? 1 से करंट अंदर आएगा और 2 से क्या होगा? बाहर निकलेगा। यही करूंगा ना, 1 से अंदर 2 से बाहर, मतलब मैं इसके बीच में एक बैटरी लगा दूंगा। अब यहाँ इतना जंक्शन है, इसको कॉम्प्लेक्स कहते क्यों है? क्योंकि जंक्शन ज्यादा है ना इसमें, सर्किट्स में जंक्शन ज्यादा है। तुम जानते हो जंक्शन पे क्या होता है, अगर एक जंक्शन से 3 ब्रांच होगा तो करंट 3 पार्ट में बटेगा, फिर आगे 3 पॉइंट मिला तो 3 पॉइंट में और बढ़ जाएगा, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होते रहेगा ना सर्किट्स में, हर जगह करंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलते हैं सर। चलो अब हमको मुझे बताओ, मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या बताया था? ये मेथड था सर, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। चलो, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। अब तुमको क्यों सॉल्व करना बहुत आसान लगेगा। देखो 1 और 2 है ना, अब मुझे बताओ 1 से कितने वायर निकल रहे हैं जो कि इक्वी पोटेंशियल पे है? तुमको दिख रहा होगा, ये 5 और 4 देखो अच्छे से। 2 से कितने निकल रहे हैं? दिख रहा है? तो क्या बोल सकते हो इसको? ट्राई करो, टेक योर 2 minutes टाइम, प्लीज डू सॉल्व हाउ, व्हाट इज द आंसर, टेल मी द आंसर, टेक योर 2 minutes टाइम एंड जस्ट रीड आउट द सर्किट बाय योरसेल्फ। देखो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ, अब इसमें क्या करूंगा मैं? पहले मुझे बताओ कि अगर 1 से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? V4 बराबर V5 दिखेगा क्या? सच बताना, फैक्ट बोलना। From this point to 1 there are 2 branches or not? 4 and 5 which are at same potential or not? देखो तो थोड़ा अच्छे से, सेम पोटेंशियल पे है क्या? सेम पोटेंशियल पे है क्या? देख लो एक बार अच्छे से। और यहां से 3 और 6 क्या है? V3 के बराबर लिख सकते हैं क्या? V6 भी क्या है तुम्हारा? सेम पोटेंशियल पे है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, सेम पोटेंशियल पे है। चल बढ़िया। अब हम
लोग आराम से सर्किट ड्रॉ करेंगे। मैंने सिंपल सा लॉजिक बताया। लॉजिक क्या है कि भाई साहब जब भी निकालना रहे ऐसा तो पहले किसके बीच में निकालना है, ये देखो सबने लिख लिया ये पॉइंट, किसके बीच में निकालना है ये देखो, 1 और 2 के बीच में निकालना है, 1 और 2 के बीच में निकालना है। 1 और 2 क्या है, एज है ना, लिख देता हूं मैं आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एजेस। ठीक, सबसे पहला जुगाड़, सबसे फर्स्ट जुगाड़ क्या करोगे, तो 1 को यहां मेंशन कर लो और 2 को यहां मेंशन कर लो। कर लिए, आराम से देखो 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, दिख रहा है, अरे बोलो दिखा। और देखो 1 से जो है 2 पॉइंट गया है, 1 से क्या, 1 से 2 से नहीं गया है, देखो तो अच्छे से, हमारा 1 से क्या गया है, 2 से गया है ना, ये इक्विपोटेंशियल है, कौन से बोलो, 4n। सिमिलरली 2 से कौन से गया है बताओ, 2 से दिस पॉइंट 3 और 6 2 से गया है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां से निकाल लो वायर। सबको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक, आर आर, ये आर हो गया और ये आर हो गया, सही है। ये पॉइंट में क्या बोला, मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल से सॉल्व करने के लिए अगर एक से अधिक ब्रांच है या एक से ज्यादा ब्रांच है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको सिंगल पॉइंट से दिखाऊंगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, एक रेजिस्टेंस 7 और 8 के बीच में भी तो है ना सर, है कि नहीं बोलो, क्या एक रेजिस्टेंस 7 और 8 के बीच में है, यस और नो बोलो। तुम खुद ही ड्रॉ कर सकते हो, देखो तुमको सब दिख जाएगा। मेरा 5 रेजिस्टेंस तो निकल गया, अब यहां पर एक ड्रॉ कर ले हम, जो दिख रहा है तो सबसे पहले दिख जाए। देखो ये पॉइंट क्या हो गया, 8 ले लो और ये क्या ले लोगे, 7 ले लोगे, यार है कि नहीं, मेरा 6 रेजिस्टेंस का काम तमाम हो गया। अब देखो 8 से ये दोनों रेजिस्टेंस है कि नहीं, दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में दिख रहा है, बोलो ये वाला देखो, बोलो भाई 8 से ये दोनों है कि नहीं, बोलो दिख रहा है, दोनों यहां से तुमको दिख रहा होगा। तो यहां से हमको क्या मिला, 2 रेजिस्टेंस जो कि क्या है पैरेलल में। सबको समझ में आ रहा है ये बात, आई होप सबको ही समझ में आ रहा होगा। तो सिमिलरली इससे भी 2 रेजिस्टेंस गया है, देख लो, ठीक, चलो यहां तक सबको पॉइंट क्लियर है, एक बार अपना सर्किट देख लो, पॉइंट्स देख लो, सबको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। अब देखो मेरे पास 6 तो हो गया और 6 4 10 हो गया, अब 2 बाकी है, 2 बाकी, ये कहां से लाओगे, ये कहां से लाने का समस्या। तो देखो तो सर ये 4 और 3 के बीच में कुछ है क्या, एक रेजिस्टेंस है, और 5 और 6 देखो सर एक रेजिस्टेंस है, देखा, दोनों किस में होगा, पैरेलल में होगा। सबको समझ में आ रहा है। तो यहां से मैंने एक रेजिस्टेंस निकाल लिया ऐसे करके, कोई बुराई वाली बात नहीं है, एक रेजिस्टेंस मैंने और निकाल डाला, ठीक। चलो अब देखो मैंने इसको कितने आसानी से सॉल्व कर लिया ना, कितने आसानी से सॉल्व किया इसको। सबको ये बात समझ में आई, और देखो इसको एक और देखो अच्छे से, ये क्यूब था, मुझे कहा गया था साइड से निकालो, इसके एज से निकालो आर इक्विवेलेंट, ठीक। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने 1 2 को मार्क कर लिया, 1 से ये दोनों वायर सेम पोटेंशियल पे थे, ये दोनों वायर सेम पोटेंशियल पे थे। तो मैंने क्या पढ़ा था, अगर एक किसी भी पॉइंट से 3 से 4 ब्रांच निकलता है तो मैं उसको सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो क्या 1 से 2 ब्रांच गया था आर 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 आर, और 2 से गया था 2 3 6, मैंने कर लिया।
अब 7 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस था कि नहीं? अब देख लो, 8 से 2 रेजिस्टेंस थे, मैंने कर लिया पैरेलल में, 7 से 2 रेजिस्टेंस थे, लेकिन 4 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, और वीडियो पॉज करके देखो अच्छे से, 5 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सर्किट को रीड्रॉ करना सिंपल है, दोनों पैरेलल साथ में सीरीज। अब इसका एक मॉडिफाइड और देखो, अगर इसको मैंने से कर लिया तो इसका नेक्स्ट सर्किट कैसा होगा, रीड्रॉ करो तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वाला R है ना, इसको R छोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, R/2 है ना, ये क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। सही बात है, बोलो भाई। और ये क्या हो जाएगा, R/2, सही है। चलो इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा, R/2, ये क्या होगा। अब सिर्फ करना है कैलकुलेशन, अब कुछ खास इसमें तो दम रह नहीं गया है सर, अब सिंपली कर लो कैलकुलेट। ये क्या हो जाएगा, मुझे 1 और 2 के बीच में निकालना है, तो आगे सॉल्व करोगे तो देखो ये R/2 क्या हो जाएगा, सीरीज में R हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साथ में 2R हो जाएगा। आगे का मॉडिफिकेशन होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें सर्किट। ये हो गया 2R, सही है। ये हो गया तुम्हारा क्या, 2R हो गया, और ये क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है, R, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आप पूरा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग दिस सर्किट you will get the answer R equivalent is 7R/5, 7R/5। सबको ये बात समझ में आ रहा है। अगेन देखो, अब कुछ खास रह नहीं गया इसमें, ये तीनों सीरीज साथ में पैरेलल, फिर सीरीज, फिर साथ में पैरेलल, तीनों सीरीज इसके साथ में पैरेलल, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर तीनों सीरीज, फिर साथ में पैरेलल, तो आंसर क्या होगा, 7R/5। अब एक बात बताओ मुझे, दिस R इक्विवेलेंट की 7R/5, इसको मैं रट भी सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो सिंपली रिमेम्बर ना, व्हाट इज R इक्विवेलेंट अक्रॉस द एजेस, तो आंसर इज 7R/5। बट ये बहुत जगह होल्ड कर जाता है। कभी कभी जो स्टेट वाले एग्जामिनेशन होते हैं, स्टेट वाले जो जितने एग्जाम होते हैं, तो उसमें सीधे पूछते हैं डायगोनल का क्रॉस निकालो। तो देखो, बहुत सारी चीजें रटना भी जरूरी है। इफ यू मेमोराइज ना, वो दिक्कत की बात नहीं है, बट हाँ रटो और समझ के याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप इसको आप लोग एक बार वीडियो पॉज करो और देखो खुद से करके कैसे हो रहा है। इस लेक्चर के बाद इसको फिर से ड्रॉ करना अपने कॉपी पे बड़ा, और देखना कि मैंने कैसे कैसे पॉइंट दिखाए हैं, क्योंकि आपको कंसेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल तो समझ में आ रहा होगा कि सेम पोटेंशियल में क्या किया गया। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और आज का वीडियो मैं हिंदी में ही बना। As we have discussed the cube section and we have solved the cube section, which is a very important part of this complex network, because cube solving, because there are lots of junction in cube, and we have solved the cube by method of same potential. We have seen how to apply same potential, and 3 cases are possible in cube solving. First case was we have taken out R equivalent across diagonal, and diagonal is 1 and 7. My answer was 5R/6. And second was R equivalent across the edges 1 and 2, and my answer was 7R/5. And third case is we have to find R equivalent across diagonal of one face of the cube. So look, this is my one face or not, this is the face of the cube, and we have to find R equivalent across diagonal of one face of the cube, means 1 and 6. Again my friend, the same method, just join the battery between 1 and C and apply the method of same potential. So I hope from this video I made this cube solving so simple that if you know how to apply the method of same potential, means in which I have explained that if 4 and 5 branches
come from a single point, then we can replace the 4 branches by a single point, which is called method of same potential. So this R equivalent across diagonal of one face of cube, its answer is 3R by 4. This case I am leaving for you all, that you will solve, and that just send me the pics in comment section that how you have solved this, if you understood the whole method of solving this cube by method of same potential. So now I will explain some more complex circuit in which we will use a concept of short circuit and open circuit. Look, in short circuit and open circuit we will discuss when we start the chapter current electricity in detail, but I am giving a basic idea that how to identify a short circuited wire or an open circuited wire, because in some complex circuit they will give you have to identify that which wire is short circuited. So in that case we have to neglect many branches, and how we will see. Suppose we will see what is short circuit and how the method of how we will use in our circuit. Let us see. Because in many circuits there are lots of branches and we have to neglect this. So short circuit, look what happened. If any conducting wire, take example, suppose this is my circuit, this is very important example. This is my circuit, please see here. This is suppose R3, this is suppose R1, this is suppose R2, this is a battery V. Look how to identify. If any conducting wire is joined in a circuit directly, look, this is a conducting wire, suppose A, B, and this conducting wire is joined directly to any circuit, then this path is called short circuited path. Means we can say that now, if any conducting wire is joined directly in a circuit, so we can say this is short circuited path. But what are the features? I will go in detail when I will deal topic current electricity. But I will make sure that I would give certain concept to identify the short circuited path. In short circuited path, voltage potential difference becomes zero, current in the circuit become maximum, and resistance of the short circuited path will become zero. Look what happens. In short circuited path, this current will become maximum, and every short circuited path resistance becomes zero. I explained you again. This path is short circuited because potential difference will remain same. So voltage will be zero and current will be maximum and resistance will be zero. Means one thing I observed from this, these three features. Current wants to travel on what path? सिंपल सी लॉजिक है, करंट किस पाथ में ज्यादा फ्लो करना चाहेगा? करंट उसी पाथ में ज्यादा फ्लो करना चाहेगा जिसमें उसको रेजिस्टेंस मिले ही नहीं. और लुक सर, रेजिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है. मैं ये आइडियल केस मान रहा हूं. क्या कह रहा हूं मैं? मैं एक आइडियल केस मान रहा हूं. दिस इज द आइडियल केस. रेजिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है. कुछ ना कुछ तो होता है, नेग्लिजिबली समथिंग तो होगा. बस दिस इज आइडियल केस मैंने माना है कि सपोज इस पाथ का आर बहुत लो हो गया, तो सिंपल सी बात है, अगर आपके रास्ते में क्या हो, रेजिस्टेंस कम आए तो आप उसी पाथ पे चलना चाहोगे ना. सपोज यू आर वॉकिंग थ्रू ए रोड and on that road there are lots of big stone. What will happen? You will walk on the road, but your motion will be hindered automatically. So I'm taking example, every human being wants to take the path having low resistance. So what happens here? Current will
follow this path and whole current will flow through this path or not? So look what happens here. Suppose मैंने एक वोल्टेज जोड़ा और मुझे एग्जामिनर ने बोला कि बताओ इसमें कितना करंट फ्लो होगा, इसमें कितना करंट फ्लो होगा और इसमें कितना करंट फ्लो होगा। तो देखना बड़े बढ़िया से, इसको अच्छे से देखना आप लोग। अगर ये वोल्टेज सोर्स है, V वोल्ट का मैंने वोल्टेज लगा दिया, ठीक, ये R1 है और ये R2 है, आपको दिख रहा होगा दोनों सीरीज में है, तो करंट जाएगा ऐसे करके। अब बताओ ये पाथ जो है इसका रेजिस्टेंस ही 0 है, तो करंट क्या होगा, सारा जितना भी करंट होगा ना, पूरा करंट कहाँ से फ्लो हो जाएगा, पूरा करंट इसी से फ्लो हो जाएगा। पूरा करंट जो होगा इसी पाथ से होके निकल जाएगा, क्योंकि करंट, देखो करंट को फ्लो होने के लिए ऐसा पाथ मिल गया जहां पर रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो करंट क्या करेगा, करंट इसी पाथ को फॉलो करके फ्लो हो जाएगा ना, मतलब करंट इसमें जाएगा ही नहीं। तो अगर मुझे एग्जाम में आया सॉल्व करने के लिए, बताओ इसमें कितना करंट जा रहा है, तो क्या बोलोगे, R3 में 0 करंट जा रहा है, बिकॉज ये पाथ क्या है, शॉर्ट सर्किटेड। तो इस ब्रांच को हम क्यों रखें, इस ब्रांच को निकाल भी तो सकते हैं ना सर्किट से, इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा है। ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जो एग्जांपल एससी वर्मा ने भी लिया है। मींस अभी आप याद रखो, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है कि ऐसा कुछ होता है। जब करंट शुरू करेंगे तो अपन और डिटेल में जाएंगे। एक और सर्किट देखते हैं अपन, कितनों को ये बात समझ में आया, इसमें करंट आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, तो पूरा आई कहां से निकल जाएगा, इसी वायर से निकल जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड पाथ है। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक और सर्किट, इसका एग्जांपल 2 लेके देखते हैं, एग्जांपल 2 में क्या होगा। अब मैं क्यों बता रहा हूं आपको पता चल जाएगा जब मैं एक सर्किट लूंगा। देखो सपोज क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस है, ठीक, R मान लो, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आपको अगर पाथ समझना है ना शॉर्ट सर्किट, तो ये एक अच्छा सवाल है। देखना अच्छे से मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ, सिर्फ इसको फील करना, ये तो फिजिक्स में फील करोगे तो बेटर रहेगा। ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। सपोज ये स्विच मान लो, क्या है ये, मैंने स्विच लिया, ठीक है ना। अब ये स्विच ओपन है सर, और ये एक कंडक्टिंग वायर से बना है, क्या है, कंडक्टिंग वायर से बना है, मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस लो है, इस वायर का रेजिस्टेंस लो है। सपोज मैंने इसको V वोल्टेज से जोड़ दिया। चलो एक बात का जवाब देना, जब स्विच ओपन था, सुनना अच्छे से, जब स्विच ओपन था, स्विच ओपन था, जब स्विच ओपन था, तो बताओ R1 और R2 में कितना कितना करंट जा रहा था। जब स्विच ओपन था सर, तो ये वायर ही ओपन था, मतलब इसको हम निकाल भी तो सकते हैं ना इस वायर को। जब स्विच ओपन था तो वायर ओपन था, तो हम निकाल तो सकते हैं ना। ये वोल्टेज सोर्स है कि नहीं, तो ये क्या करेगा, ये करंट डिलीवर करेगा, आई, दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, तो आई क्या हो जाएगा, जल्दी बताना मुझे, आई क्या हो जाएगा भाई साहब, तो आ हो जाएगा तुम्हारा V बाय ओम्स लॉ, कर लो, R1 बाई R2। ये कब का केस है, व्हेन स्विच वाज ओपन, व्हेन स्विच वाज ओपन, ये तो बहुत सिंपल था, व्हेन स्विच वाज ओपन। ये सवाल एससी वर्मा में दिया गया है न्यूमेरिकल डाटा के साथ, आप देख लेना। शॉर्ट सर्किटेड पाथ समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है, ये एग्जांपल एससी वर्मा में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। जब स्विच ओपन था तो करंट कुछ ऐसा गया, दोनों सीरीज में था, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा V1, और इसमें V1 इसमें V2 होगा, दोनों सीरीज में है, बिल्कुल सही बात है, कोई बुराई वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब मुझे बताओ जब स्विच क्लोज होगा, व्हेन स्विच वाज क्लोज्ड, एग्जांपल लूंगा अगर, व्हेन स्विच वाज क्लोज्ड, अब जब जो स्विच लगाया है सर मैंने, जो स्विच था मेरा कुछ ऐसा जुड़ जाएगा, ये तो ओपन था, कोई दिक्कत, मैंने स्विच को जोड़ दिया, व्हेन स्विच वाज क्लोज्ड। अब बताओ करंट का वैल्यू क्या होगा, सोचो। अभी मैंने फीचर बताया था सर शॉर्ट सर्किट में पोटेंशियल 0, करंट बताओ मैक्सिमम, रेजिस्टेंस क्या होता है 0। ये स्विच क्या था, एक कंडक्टिंग वायर से बना था जिसका रेजिस्टेंस बहुत 0 होता है। 0 एक आइडियल केस है, मैं इसको निगलिजिबली वेरी स्मॉल बोल रहा हूँ, नियर टू 0 बोल रहा हूँ।
ठीक, अब बताओ क्या होने वाला होगा। इस वोल्टेज सोर्स करंट डिलीवर करेगा, करंट चलेगा, ये क्लोज लूप है। करंट का आप कैसा भी डायरेक्शन मान सकते हो, ये लूप है। ठीक, चलो करंट चला। अब देखो इसको क्या पाथ मिल गया रास्ते में, इसको रास्ते में क्या मिल गया, इसको रास्ते में शॉर्ट सर्किट पाथ मिला। बोलो भाई, इसको रास्ते में क्या मिला, शॉर्ट सर्किटेड पाथ। तो करंट क्या होगा बताओ, समझ में आ रहा है तुम लोग को। करंट जो है वो इसमें जाएगा ही नहीं ना, मीन्स R2 में क्या होगा, नो करंट विल फ्लो इन R2, नो करंट विल फ्लो। कितनों को बात समझ में आया। पूरा का पूरा करंट क्या होगा सर, R1 में जाएगा और इसको एक कनेक्टिंग पाथ मिल गया, पूरा करंट निकल जाएगा। तो क्या बोलोगे, करंट इन R2 बोल सकते हो। करंट इन R2 भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो व्हाट इज करंट इन R1, जल्दी बताओ, वोल्टेज बाय। कितनों को ये कंसेप्ट समझ में आया। देखो अगेन ये कंडक्टिंग वायर सर्किट से सीधे जुड़ गया, तो इसका क्या हो गया, वोल्टेज जीरो हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया और स्टिल जीरो हो गया। समझ में आ रहा है। और करंट उसी पाथ में फ्लो होना चाहता है जहां पे उसको लो रेजिस्टेंस मिले, मींस करंट लव्स शॉर्ट सर्किटेड पाथ। इट इज ओके और नॉट, आर यू गेटिंग माय कंसेप्ट। अब देखो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ किनके लिए, ये वीडियो उनके लिए है जो ट्वेल्थ में जा चुके हैं, उनका ट्वेल्थ का सिलेबस खत्म हो चुका है और वो जेई मेंस और एडवांस का पेपर देने वाले हैं और नीट के देने वाले हैं। ये दोनों वीडियो जो बनाया मैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट 1 और कॉम्प्लेक्स सर्किट 2, ये आप लोग का रिक्वेस्ट था कि सर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो सर्किट सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं वीडियो बनाया था। तो मैं इस पाथ को बताया। अगर आपको ये पाथ और कहीं देखना है तो इसका एग्जांपल एमीटर बेस्ड है। आप लोग याद करो, हम लोग एमीटर में क्या किए थे, एमीटर बनाने के लिए V2 के गैल्वेनोमीटर और उसके पैरेलल में एक शंट ले लिए थे, याद है। उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस ले लिए थे और बोले थे शंट का रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत छोटा होता है। एक बार तो फील करो, देखते हैं फिर से कि हम लोग एमीटर में क्या क्या देखे थे। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखो एक मिनट के लिए हम लोग देख रहे हैं एमीटर में क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड इन एमीटर। देखो जो कंसेप्ट हम लोग सीखे थे ना अबाउट एमीटर, शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट देख रहे हैं हम लोग, वी आर सीइंग द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। सो एग्जांपल ले लो, समझने के लिए बोल रहा हूं मैं एमीटर का। एमीटर देखो हम लोग क्या किए थे, एक गैल्वेनोमीटर लिए थे, ठीक है। इसका अपना क्या था, नीडल था, ठीक है ना। इसका स्प्रिंग होता है यहाँ पे, और ये क्या था अपना, एक शंट रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में जोड़ दिए थे। तुम्हें पता है ये शंट क्यों जोड़ा गया था, ये शंट ना होता ना तो अपना गैल्वेनोमीटर क्या होता, खराब हो जाता। देखो हुआ क्या था, मैंने लैब में क्या किया था मैं तो बताता हूँ। हम लोग को पता है ना गैल्वेनोमीटर फुल स्केल रिफ्लेक्शन करता है, तो उसका जो है ना नीडल वो इट जस्ट ऑसिलेट, क्योंकि यहाँ पे एक लगा होता है मैग्नेट, ठीक है ना, और ये एक स्प्रिंग से बंधा होता है, स्प्रिंग से बंधा होता है। तो मैं लैब में क्या किया ना कि एमीटर को जोड़ दिया मेन सप्लाई से, तो हुआ क्या ना, इसका था ना नीडल, वो क्या हुआ ना पूरा फुल स्विंग हो गया, फुल स्विंग हो गया, और फुल स्विंग होने के बाद लौट के वापस आया ही नहीं। तो मैं पूछा जो था मेरे लैब असिस्टेंट कि सर हुआ क्या इसमें, तो उन्होंने कहा ये जो एमीटर डिवाइस था ना वो खराब हो गया, क्योंकि इसका स्प्रिंग टूट गया। क्यों, देखो सपोज अगर मैं मेन सप्लाई से जोड़ दिया, और हमने पढ़ा है कि गैल्वेनोमीटर सेंस करता है स्मॉल करंट। देखो भाई गैल्वेनोमीटर को IG चाहिए अपना फुल स्केल रिफ्लेक्शन शो करने के लिए, इसको मिल गया, इसका काम हो गया। तो हम लोग पढ़े थे ना कि अगर एमीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगाते हैं। क्यों, समझना अच्छे से। सपोज करो मैं इसे मेन से जोड़ देता और इसको ना लगाता, सपोज जोड़ देता तो सारा करंट फ्लो हो जाता, इसका कॉइल क्या होता, इसका स्प्रिंग टूट जाता, मतलब जल जाता है, ये बर्नआउट हो जाता, मतलब ये खराब हो जाता। अब देखो इस शंट कर क्या रहा है,
शंट का रेजिस्टेंस क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं ना, शंट बोलते हैं। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, आर, बहुत लो होता है ना, आर इज लो और नॉट। देखो अगर मैंने आई कितना दिया, सपोज मैंने आई, देखो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, मैंने 100 एम्पियर लिया, कितना लिया, 100 एम्पियर लिया। देखो ये था गैल्वेनोमीटर, ये क्या था भाई, 0.01 मिली एम्पियर पे क्या शो कर दिया। सपोज कर लो कि ये 1 एम्पियर लिया, ठीक है, इसका 1 एम्पियर पे फुल स्केल था। अब बताओ ये पाथ जो है वो कैसा बन गया इसके लिए, शॉर्ट सर्किट और नॉट। तो यहाँ इसमें कितना करंट गया बताओ मुझे, 100 माइनस 1, बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ कितना बचा, 99 एम्पियर। कुछ समझ में आया आप लोगों को कि इसने क्या किया, जितना करंट इसको चाहिए था फुल स्केल के लिए दे दिया, और जितना बाकी बच गया ये क्या हो गया, सभी इस शॉर्ट सर्किट पाथ से फ्लो हो गया। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत जीरो है ना, बहुत काफी जीरो है, क्योंकि इसको शंट बोलते ही हम लोग। रेजिस्टेंस जीरो है तो पूरा का पूरा करंट क्या हो गया, फ्लो हो गया। तो हम लोग लिखते थे, याद करो, आई जी इंटू जी, तो क्या लिखते थे, आई माइनस आई जी इंटू एस, याद करो, है कि नहीं। हम यहां से आई जी का निकालते थे वैल्यू कि व्हाट इज माई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट, कुछ याद आ रहा है आप लोग को। तो इसने क्या किया, इसने इसको बचाया, इस शंट ने इसको बचाया। अगर शंट ना होता तो ये क्या होता, इसका काम तमाम हो जाता ना सर। तो लैब में मैंने यही किया था, मेन से जोड़ दिया, मेरा मीटर क्या हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि उसका कॉइल ही टूट गया। समझ में आ रहा है ये बात आपको, समझ में आया कि आपने ये देखा था मीटर में कि जितना इसको चाहिए था वो चला गया, और इसका शंट था, दिस वाज प्रोवाइडिंग वेरी लो रेजिस्टेंस, तो जो करंट बचना था ना, जितना था 100 एम्पियर, वो 100 माइनस 1 कहाँ चला गया, शंट के अक्रॉस। आई होप मैंने आपको शॉर्ट सर्किट पाथ समझा दिया होगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको समझने के लिए कि कैसे इस सर्किट में आ जाता है, आपको कैसे इसको एनालाइज करना होता है। तो आपने ये सब फील किया होगा जब करंट पड़ा होगा, क्योंकि मैं हो सके तो मैं कल इलेक्ट्रोस्टैट का बिल्कुल नया वीडियो लाऊंगा, 12th का स्टार्ट कर रहा हूँ और 11th का भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो में कंटेंट ज़्यादा रहेगा, क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे विद कंसेप्ट, आपको सबको समझेगा। अगर अच्छे से आप ध्यान दोगे तो, और कोई भी आपको डिफिकल्टी लगे, कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो आई विल डू। चलो एक सवाल देख लेते हैं कि मैंने इसको क्यों आपको पढ़ाया था। तो लेट अस सी ए प्रॉब्लम प्लीज, लेट अस सी ए प्रॉब्लम कि व्हाट हैपेंड। देखो एक सर्किट आया था, ये बड़ा अच्छा सवाल था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था ये सवाल। एक सर्किट था ऐसा करके, ये तुम्हारा 2 ओम था, ये था 4, ठीक है, कुछ ऐसा था सर्किट में, ठीक है। ये 3 ले लो, मैं बस एक कंसेप्ट बताऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई, और तुम लोग तो कर ही लोगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो बढ़िया बात। ये वायर है, एक और वायर है, कितना है, 2 ओम, और कुछ ऐसा दिया था, कहा था कि ये वाला वायर जो है ऐसा, कुछ ऐसा मान लो है, ठीक है ना, कुछ ऐसा दिया रहेगा। अब तुम ही बताओ, मैं सबको दे दूँ वैल्यू, कुछ भी ले लो ना, 1 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। तो सवाल एग्जामिनर ने क्या पूछा था, ए और बी के क्रॉस क्या निकालो, आर इक्विवेलेंट। अब तुम्हें फील कुछ हुआ होगा सर कि बहुत सारी चीज जो है इसमें फालतू के लगे हैं। देखो
अगर मुझे ए और बी के बीच में निकालना है आर इक्विवेलेंट, आर ए बी निकालना है, आर ए बी इक्वल टू व्हाट, मैं क्या करूँगा, 2 से करंट जाएगा, मान लो गया, करंट गया 2 से, गया 2 से, ये पाथ क्या है, शॉर्ट सर्किटेड ना, मुझे बताओ ये पाथ शॉर्ट सर्किटेड है कि नहीं, तो कुछ करंट क्या आगे जाएगा इसमें और इसमें, नहीं जाएगा, तो सारा करंट कहाँ से फ्लो हो जाएगा, इधर से फ्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, फील कर पा रहे हो। तो ऑल करंट विल फ्लो व्हाट फ्रॉम दिस पॉइंट और नॉट, देखो अच्छे से, ये जो पाथ है ये वाला, ये पाथ क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हुआ कि नहीं, तो ऑल करंट विल फ्लो थ्रू व्हाट पाथ, दिस पाथ और नॉट, तो क्या करोगे, इसको रखेंगे हम लोग, इस रेजिस्टेंस को रखने को फायदा है, बता, इसको निकाल सकते हो ना, जब ये दोनों निकाल लोगे, इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा है, इसको निकाल सकते हो ना, तो इसको निकाल दोगे, तो इसको निकालने के बाद क्या होगा, ये सर्किट बहुत छोटा हो जाएगा, ये बचेगा, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, फिर तुम सॉल्व कर सकते हो, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है। तो कभी कभी ऐसा सर्किट एग्जाम में आता है, इसको नोट डाउन कर लो प्लीज, अच्छा सा, ये अच्छा सवाल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, प्लीज नोट डाउन। समझ में आई ये बात, ये पाथ क्या होगा, शॉर्ट सर्क्यूटेड, तो ये करंट क्या हो जाएगा, सही निकल जाएगा बाहर की ओर, समझ में आ रहा है, तो करंट यहाँ जाएगा ही नहीं। आई होप यू आर गेटिंग माई कंसेप्ट। नाउ आई एम गिविंग सम मोर प्रॉब्लम्स। कर लिया आप लोगों ने नोट डाउन, समझ में आया ये क्वेश्चन क्या था, पॉज कर लो स्क्रीन, क्वेश्चन को लिख लो प्लीज। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो एक सवाल और देखते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। हमने कंसेप्ट पढ़ा होगा, कंसेप्ट ऑफ स्टोन ब्रिज, ये आप लोग करोगे, मैं आपको समय दूंगा इसके लिए। ये ए है, सपोज करो ये ए है, ये 10 ओम है, ठीक, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा 8 ओम हो गया, आगे चलते हैं, ये 3 ओम हो गया, 3 ओम हो गया, आपस में क्या है 6 ओम, 6 ओम पैरेलल में 6 ओम, 6 ओम क्या हो गया आपस में पैरेलल में हो गया सर। ये वाला जो है ये 5 ओम हो गया, ये ए है, ये क्या ले लोगे, ये 5 ओम ले लोगे। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, ये टर्मिनल जो है बी ने बोला है फाइंड आर ए बी बराबर व्हाट, ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस हैं 3 ओम, ऑप्शन बी है 4 ओम, ऑप्शन सी देखो 4.5 ओम, और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी इज 5 ओम। बताओ इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करो, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट ऑफ स्टोन ब्रिज, तो देखो मैं फिर से आपको बता देता हूं, जब भी कुछ ऐसा सर्किट दिखे, जब भी कुछ ऐसा दिखे कि ऐसा कुछ लोचा हो रहा है, तो क्या करो, R1 R2 R3 R4, इफ R1 R4 R2 R3 है तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, आपको पता होगा। बस देखो इसमें कैसे कंसेप्ट अप्लाई करते हैं हम लोग, इसको सोल्व करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। ये 6 और 6 का क्या होगा, पैरेलल, 6 का पैरेलल, 6 इंटू 6 बाई 6 प्लस 6 कितना होगा, बिकॉज R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 6 आपस में क्या है पैरेलल में, तो ये क्या हो जाएगा 6 36 बाई 12, ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे, ये हो गया 3 ओम, सही है। 10 का क्या होगा पैरेलल में, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, 10 इंटू 10 100 बाई 10 इंटू 10 100 बाई 20 5 हो जाएगा, इसको बदल लो, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा,
अब तुम बोलोगे सर इसमें स्टोन कैसे आ गया, तो फील तो करो, स्टोन आ गया ना इसमें। 5 3 15, 5 3 15, समझ में आ रहा बात। 5 3 15, 5 3 15, तो ये क्या कर दोगे इसको, दिस वायर विल बी ओपन सर्किट और नॉट, दिस वायर विल बी ओपन सर्किट, तो ऐसा बन जाएगा सर्किट ये। 5 3 किसमें है, सीरीज में 8, और ये क्या हो जाएगा 8, समझ में आ रहा है बात। ये हो गया ए, ये हो गया बी, बताओ कितना होगा इसका आंसर अब। 8 8 इन पैरेलल, क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 8 बाई 8 प्लस 8 क्या हो गया 16, कितना हो जाएगा आंसर इज। देख लिए आपके पास लॉजिक है ना। मैं टॉपिक अभी मैं डिस्कस क्यों किया, जब भी कोई ऐसा नेटवर्क देखना इसमें 4 आर्म्स तुमको दिखे और कोई आर्म्स बीच में दिखे, तो अप्लाई करना किसका, कंसेप्ट ऑफ स्टोन बेस, समझ में आया। तो अगर कैलकुलेशन जो है ना तुम्हारा प्रिसाइज है और प्रैक्टिस अच्छा है, तो ये सब क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखो थोड़ा, सबको ये बात समझ में आ रहा है, सबको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के रिलेटेड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के रिलेटेड, मजा आएगा, बिल्कुल आपको मजा आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखो, आर कुछ ऐसा सर्किट है, इसका आंसर बोलना। सब जितने भी सवाल ले रहा हूं सभी स्टैंडर्ड सवाल है। चलो इसमें क्या बोला है निकालने के लिए, देखो देखने में कितना अजीब लग रहा है, ये देखने में कितना अजीब लग रहा है। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें पेन पेपर में तुमको उठाना नहीं पड़ेगा अगर तुम्हारे पास अप्रोच सही है तो, ठीक है। देखो कैसे इसको सॉल्व हम लोग कर पाएंगे। इसका ऑप्शन कुछ ऐसे है, ऑप्शन दो, ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट 2r, सेकेंड ऑप्शन इज 4r by 3, third option is 2r by 3 and fourth option is, हाँ बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो आर आर किसमें है, सीरीज में, और ये साथ में क्या है इसके पैरेलल में, सबको समझ में आ रहा है ये बात। तो आर आर 2r और साथ में क्या है पैरेलल, तो क्या हो जाएगा आर आर 2r और साथ में पैरेलल, तो क्या हो जाएगा 2r क्रॉस r, 2r प्लस r, कितना हो जाएगा 2r बाई 3 और नॉट 2r बाई 3, ये भी क्या हो जाएगा 2r बाई 3, ये भी क्या हो जाएगा 2r बाई 3, ये भी क्या हो जाएगा 2r बाई 3। समझ में आ रहा है, सॉल्व करो, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी करो, ट्राई करो, ट्राई करो, इसका आंसर क्या आता है देखो, जल्दी सॉल्व करो। कर लिया, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 2r by 3, नो डाउट। कैसे, चलो देखते हैं। हमको एबी का कॉस्ट निकालना है, देखो अच्छे से, आर आर क्या हो जाएगा 2r, दिस सर्किट विल बी इन दिस फॉर्म और नॉट, 2r by 3 हो जाएगा, ये होगा, ये क्या होगा, ये भी हो जाएगा 2r by 3, ये क्या हो जाएगा भाई साहब 2r by 3, ये क्या हो जाएगा 2r by 3, बीच में क्या है वायर,
हाँ, कुछ दिखा? कुछ दिखा? एबी का कोर्स निकालना है ना? ये स्टोन ब्रिज, तो ये क्या हो जाएगा सर? गायब हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया? दोनों क्या सीरीज, दोनों क्या सीरीज जो साथ में क्या हो जाएंगे? पैरेलल में। समझ में आ रहा है बात? 2r/3, 2r/3 क्या हो जाएगा सीरीज में? 4r/3, ये क्या हो जाएगा? 4r/3। साथ में कर लो पैरेलल तो क्या जाएगा? 2r/, दोनों क्या हो जाएंगे? सीरीज। सीरीज ये दोनों क्या हो जाएंगे? सीरीज, साथ में क्या होंगे? पैरेलल। तो इसका आंसर क्या होगा? 2r/3। समझ में आ रहा है? कितने बेकार सवाल होते हैं ये सब, और इसमें टाइम लगता है। ठीक है, चलो कुछ और सवाल देखें। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और टॉपिक सिंपल लगा होगा। प्लीज़ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरा चैनल देखो या ना देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखना ही है, बट हाँ इतना कह सकता हूँ कि चैनल वही देखो जिसमें कंटेंट ज़्यादा हो, आपको मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम मिल सके। अभी तो बस मैंने बच्चों के डिमांड के हिसाब से इसका एक सीरीज स्टार्ट किया था, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, अभी तो बहुत क्वेश्चन करना है इसमें। ठीक है, तो जो बेसिक मेथड था सॉल्व करने का आपको मैंने दिया, बट हाँ आई विल कम विथ अ टॉपिक ऑफ 11th एंड टॉपिक ऑफ 12th, उसको मत मिस करना आप लोग। और कंटेंट कंपेयर करना, किसका कंटेंट आपको ज़्यादा मिल रहा है, कितने प्रॉब्लम ज़्यादा मिल रहे हैं, समझाने का तरीका किसका कैसा है। क्योंकि देखो 10-15 लेक्चर किसी का वीडियो देखोगे अलग अलग लोगों का तो कंफ्यूज होगे। एक वीडियो देखो, कंटेंट देखो, और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है सम इन राइटिंग और सम वर्ड वर्क, बिकॉज अभी तो उतना फैसिलिटी है नहीं क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो मैं इसके बाद अच्छे से सेटअप करके इम्प्रूव करूंगा और ट्राई करूंगा कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम मिले, कंसेप्ट भर भर के मिले यार। मेरा मेन फंडा यही है। तो प्लीज do subscribe my channel and don't forget to click the bell icon to get latest notification. Okay, again मिलेंगे हम लोग 12th के नए चैप्टर के साथ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके देन, बाय।